Why potash feldspar is not available? Maybe it is too much aluminium rich meta sediment. That is why potassium is very poor. The tie lines will tell you which mineral phases will be stable there or not. ठीक है? अच्छा. Now मैं और एक डायग्राम बनाता हूँ इधर. ना इसको निकाल देता हूँ. मैं एक AFM डायग्राम डालता हूँ. ये तो एक एफ गया. AFM डायग्राम. Just I will show you some fields. AFM डायग्राम. AFM डायग्राम में so this field you know this is chloride field. Chloride. मैं लिखता हूँ AFM डायग्राम. AFM डायग्राम. The chloride field continues from AM to AF end. ये पूरा end continue करके रहता है. Now what he says you know, this is the field. This much you remember, and potash feldspar will be outside. Projected one. This point only you remember. 9, 10 ना. Number 11 ना. कुछ भी नंबर दे देना आप. Albite does not appear in this field. हाँ? क्लोराइड फील्ड इसके बाद क्लोराइड क्या करता है, यहाँ से एंड से यहाँ तक कंटिन्यू करता है. अभी देखेंगे हम बायोटाइट जोन को जब जाएंगे, यू विल सी दिस फील्ड will become shorter. That is why I told you here. That is in the chloride zone. The chloride show a admixture of iron and magnesium 100% to 100%. मेरा बात सुनो. ये 100% आयरन, ये 100% मैग्नीशियम है ना. तो क्लोराइड में फुल्ली मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, फुल्ली आयरन क्लोराइड भी मिलेगा इन क्लोराइड जोन में. जब बायोटाइट जोन को जाएंगे तब देखना फुल्ली आयरन रिच नहीं मिलेगा, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा. वो चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दिस डायग्राम इज नेसेसरी. मेरा बात समझा कि नहीं समझा? इसमें क्लोराइड के कितना आयरन परसेंटेज है? क्लोराइड जोन यहाँ तक आता है ना. क्लोराइड देखो इसको टच करता है ना, इसमें आयरन कितना है? फुल है ना. और मैग्नीशियम कितना है? इस एंड में फुल है. सो यू कैन गेट 100% आयरन क्लोराइड, 100% magnesium chloride. But as you go to biotite zone or garnet zone, those chlorides you will find they are not 100% iron rich. They will be richer in magnesium. This side it will shift. Those things we will discuss when you will go to biotite zone. मेरा बात समझा? Now, albite ये डायग्राम में नहीं दिखता है. Albite is not shown in this diagram. In this diagram, albite is a sodium silicate mineral, sodium aluminum silicate. So this is not always available. ये always दिखता नहीं है, always not available. He says if the parent rock is albite rich, then albite will develop here. पेरेंट रॉक में अल्बाइट होगा तो वो आके अल्बाइट डिपॉजिट होगा, वो रिक्रिस्टलाइज करेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. व्हिच रॉक इज रिच इन अल्बाइट, देन अल्बाइट विल डेवलप. ग्रेनाइट में क्या होता है? व्हाट इज द कंपोनेंट कंपोजिशन ऑफ द ग्रेनाइट? पोटाश फेल्डस्पार.
albite भी है, it's not that albite is not there, but it is not very much rich in albite. But there are some rocks, you know, which is called albitites. Albitites. So those are special type of granite, which is very much rich with albite. So if the parent rock or the source provenance is albitite, then that will provide albite to the sediment, and this albite will recrystallize into a individual crystal. So the albite, you know, in a slide, so these are the sericite schist or the mica schist, whatever you say. Albite occurs as a porphyroblast. ऐसा ऐसा. These are the albites. Albites. Albite. मेरा बात समझा कि नहीं समझा? So it is a rare occurrence, but it is there in the chloride zone. Understood na? So you understood the importance of tie line. Tie line का importance यही है. Now we will go to biotite zone. We will come to this zone, biotite. These two zones we will see today. So next class we will see the garnet zone. Okay. No break, na? We will straight go. पानी लेता हूँ. Okay. बायोटाइट जोन ना कुछ पूछना है अभी? So I have shown you biotite zone here. So temperature 550. The pressure is around 10 kilowatt maximum. I am telling. Here also biotite is there. Here biotite. Why it range up? So temperature is say 450 to 550. 550. Then garnet will develop. Garnet. ना? आपको एक डायग्राम दिया था सिल्मेनाइट, काइनाइट या अंडालुसाइट का. वो पॉइंट कितना है? 37 4 इस तरफ 5. वो पॉइंट इधर आएगा, इसका अंदर आएगा, इसका अंदर ही आएगा ना. वो पॉइंट देखो विद इन द बायोटाइट जोन इट विल ऑकर, बट दोस काइनाइट्स और एंडालुसाइट विल नॉट ऑकर हियर. क्यों नहीं? हाँ? प्रोटोलिस. The point comes there. The point where three minerals can coexist. The point comes here. इसी जगह में आता है ना. बट अभी तक वो काइनाइट ना आया ना सिल्मेनाइट आया ना अंडालुसाइट आया, कुछ भी नहीं आया, आएगा भी नहीं है.
want the two answers. One is composition. कायनाइट, सिल्मेनाइट, एंडालुसाइट लाने के लिए आपको एल्युमिनियम सेडिमेंट कहाँ है, वो डायग्राम में किधर आता है? अभी जो डायग्राम आप डाला है, वेयर इज कायनाइट? एकदम टॉप में. द रॉक इज नॉट फॉलिंग देयर. रॉक से वो बाहर है, खाली टेम्परेचर प्रेशर दिखाने से होगा. तो अनलेस योर पेरेंट रॉक बिलोंग्स टू दैट एरिया, यू नो. मेरा बात समझे कि नहीं समझा? तो अब तो जाके कायनाइट सिल्मेनाइट आएगा ना, खाली पॉइंट आने से क्या होगा? इधर है ना, अब थोड़ा पकड़ नहीं पाते हैं मेरे बात प्लग. ये कायनाइट आएगा. अब पेलिटिक रॉक इज हियर, ऐसा है. और टाई लाइन, नॉन ऑफ द टाई लाइन इज जॉइनिंग टू कायनाइट देयर. सो बट विल डिस्कस दिस पार्ट लिटिल मोर. अब इस तरह खाली आप समझ लो, दैट पॉइंट कम्स हियर. If suitable rock is there, then kyanite may appear. If highly aluminous sediments. But what you will write? This is the temperature, pressure. Pressure you can write, you know, up to 10-12 kilobar. Now reaction. Then what is the reaction which gives rise to biotite? Biotite कौन देगा? तो the reactions are, मैं लिखता हूँ, chloride plus potash feldspar. Chloride potash feldspar is equal to biotite plus muscovite. Quartz plus water. Other one is chloride plus muscovite, biotite plus muscovite. This one, ये वाला दे देना. So chloride gives rise to biotite in combination with potash feldspar or muscovite. ये biotite का अंदर पोटेशियम है, so it has to derive potassium from some mineral. So which mineral in the assemblage, you know, has potassium? Muscovite or potash feldspar. These are the two minerals. So it has to combine with them and produce biotite. That is the principle. So let us draw this. ना वहाँ डाल के, ऐसा जगह नहीं. एक मिनट क्या? Chloride, ठीक है? This is potash feldspar, muscovite, biotite will be here, muscovite is here, biotite like this, biotite. Now आप देखो, इसको ड्रॉ करो, इसको ज्वाइन करो. मस्कोवाइट तो ज्वाइन है, इसको ज्वाइन करो, दोनों को ज्वाइन करो. बायोटाइट आ गया ना.
आपका पेलिटिक रॉक किधर है, पेलिटिक रॉक इधर है, ऐसा। पेलिटिक रॉक इधर है। ड्रॉ करो पहले। ड्रॉ किया, बायोटाइट ड्रॉ किया, मॉस्कोवाइट। नाउ इफ यू कंपेयर विद द प्रीवियस डायग्राम, क्लोराइड जोन का वो पोटास फेल्डस्पार से ये क्लोराइड जोन था ना, सी बायोटाइट वाज नॉट देयर दैट टाइम, पोटास फेल्डस्पार वाज कनेक्टेड टू क्लोराइड। अभी वो टाई लाइन नहीं है, वो टाई लाइन नहीं है, मैं इसलिए मैं दिखाया नहीं था, मैं फिर भी एक डेड लाइन दे देता हूँ ऐसा, जस्ट टू एक्सप्लेन। ये द टाई लाइन, अब लिखो नेक्स्ट के फेल्डस्पार, देन क्लोराइड टाई लाइन इज ब्रोकन। ये ब्रोकन हो गया, नहीं है अभी, इसको बोलते हैं फ्लिप टाई लाइन। फ्लिप लाइन, फ्लिप मीन्स चेंज हो गया, अल्टर हो गया, वो टाई लाइन अभी है नहीं। टाई लाइन फ्लिप और टाई लाइन फ्लिप, अभी बायोटाइट क्लोराइड डेवलप हुई है टाई लाइन। So chloride reacted with potash feldspar giving rise to biotite. यही है ना? Now what he says, you know, in a rock potash feldspars are less compared to chloride. Compared to chloride. क्लोराइड की परसेंटेज के हिसाब से पोटाश फेल्डस्पार कम होता है। तो इन द रिएक्टेंट साइड में पोटाश फेल्डस्पार और क्लोराइड है among the reactants. So potash feldspar का परसेंटेज कम है, अमाउंट कम है compared to chloride. So in this reaction potash feldspar is fully consumed. मेरा समझा कि नहीं, इसलिए वो दिखाता नहीं वो पोटाश फेल्डस्पार और क्लोराइड दोनों मिलके दे आर गिविंग टू बायोटाइट। ना ये पेरेंट रॉक है क्लोराइड जोन का, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। सो रिएक्टेंट में जो पोटाश फेल्डस्पार है कंपोनेंट है, इट इज लेस। सपोज ये 20% है, ये आपका 80% है, ये दोनों आप मिलाओगे तो वेट परसेंटेज तो 20% कंज्यूम हो जाएगा ना, बिकॉज लॉट ऑफ क्लोराइड इज देयर इन द रॉक। सो क्लोराइड खत्म हो जाता है, सॉरी के फेल्डस्पार खत्म हो जाता है, इसका मतलब यही है। तो इसलिए ये टाई लाइन और एग्जिस्ट नहीं करेगा क्लोराइड के साथ, खत्म हो गया पूरा, कंज्यूम्ड रहेगा तो तब भी जाए टाई लाइन आप दोगे ना, तो कंज्यूम हो गया पूरा पोटाश फेल्डस्पार टाई लाइन। तो इसलिए मैं लिखा है पोटाश फेल्डस्पार लेस कंपेयर टू क्लोराइड। सो पोटाश फेल्डस्पार इज फुल्ली कंज्यूम्ड। फुल्ली कंज्यूम्ड। समझा ना? ये एक चेंज होता है ना। अभी जो बायोटाइट डेवलप किया, द बायोटाइट पर डेवलप्स हियर। पहले जो बायोटाइट होगा, फिर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इनिशियल बायोटाइट इज आयरन रिच। एज यू गो विथ हायर टेम्परेचर, as you go towards higher temperature or higher grade, it becomes magnesium rich. पहले जो बायोटाइट होता था आयरन रिच है, बट ग्रेजुअली इट बिकम्स मैग्नीशियम रिच। मेरा बात समझा कि नहीं समझा? तो आप यहां से चालू करोगे,
तो पहले जो हुआ वो बायोटाइट आयरन रिच होता है, धीरे 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 मैग्नीशियम रिच होता है। तो मैग्नीशियम कहाँ से मिलता है उसको? इससे मिलता है। कहाँ से मिलता है? चार। तो मैग्नीशियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगाइड। मेरा बात समझता कि नहीं समझता? उसमें मस्कोबाइट के अंदर Mg है ना, तो मस्कोबाइट बिकम्स ग्रेजुअली प्योरर, मस्कोबाइट बिकम्स ग्रेजुअली प्योरर, वो फेंगिटिक नहीं रहता है वो, और बायोटाइट बिकम्स ग्रेजुअली मैग्नीशियम रिच विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेरा बात समझता है? मैं उसको थोड़ा ऊपर से मिटा के लिखता हूँ, अनलेस अदर यू विल फॉरगेट, यू नो। पांच, बायोटाइट आयरन रिच होता है, क्या मैग्नीशियम रिच होता है, और मस्कोबाइट Mg लो, ग्रेजुअली लो होता है, अल्टीमेटली इट विल बिकम नॉन फेंगिटिक। नॉन फेंगिटिक के लिए जाता है। मेरा बात समझता ना? तो क्योंकि वो इसलिए ये जो फील्ड है ना, अब देखो बायोटाइट ऐसे फील्ड था ना, ऐसे फील्ड है ना, तो पहले बायोटाइट आयरन, ग्रेजुअली इसका पास मैग्नीशियम आएगा, बढ़ेगा, ऐसा मैग्नीशियम धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, मैग्नीशियम बढ़ते रहेगा, धीरे धीरे ऐड होगा ना, ये लाइन धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, मैग्नीशियम बढ़ते रहता है, और ये छोटा होगा, धीरे 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 छोटा होगा। मेरा बात समझता है? सर एफ का कंटेंट तो उधर है ना, तो उधर बढ़ना चाहिए। ये तो अभी हम एक एफ को दिखाते हैं, यहाँ तो Mg है ही नहीं, हम दिखाएंगे AFM को। वो जो आप बोल रहे हैं FEMG को कैसे दिखाएंगे, ये फील्ड ये डायग्राम में नहीं दिखाएंगे, हम AFM को जाके दिखाएंगे ये चीज को। बट अभी खाली समझो, ये ग्रेजुअली विथ हायर ग्रेड ना, द बायोटाइट बिकम्स मैग्नीशियम रिच एंड दिस बिकम्स ग्रेजुअली मैग्नीशियम 4। तो मैग्नीशियम को ले लेता है ये। मेरा बात समझता है? वो AFM को जाएंगे तो बायोटाइट का फील्ड कैसे चेंज होता है हम दिखाएंगे। अभी मैं पहले बोला था क्लोराइड का फील्ड, क्लोराइड फील्ड पूरा लगा रहता है, ये आर्म से ये आर्म, दैट क्लोराइड बिकम सपोज आई विल से मैग्नीशियम रिच। तो छोटा होते रहेगा ना, वहां दिखा पाएंगे आप। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अनलेस यू गो टू AFM डायग्राम, the variation of iron and magnesium you cannot show. यहाँ तो FEMG is plotted in same point. You can descriptively you can write. Suppose you are only putting a AKF diagram and you want to write these points, you write only as a description. You cannot display it in this diagram. But आप AFM के जाके डिस्प्ले कर सकते हैं, वो आएंगे अभी। मेरा बात समझता है कि नहीं? तो इसका अंदर क्या होता है? आयरन मैग्नीशियम एक